Our today's guest is a founder of Tiny Miracles Hub, a sacred space where energy heals and miracles unfold. With over 4 years of experience, she is helping people to raise their energy frequency and consciously create their desired life. From being a shy housewife to stepping into a purpose as a confident life coach, healer, she truly embodies the magic and she helps others to experience the same. She is an Ho'oponopono practitioner, NLP practitioner, chakra healer, EFT practitioner, and a master in sales, blending practical wisdom with deep energetic healing approaches. As a mentor at the Energy Queens Hub, she has already guided thousands of women on their journey of healing, confidence, and transformation. And her mission through Tiny Miracles Hub is simple yet profound to help people to be able to experience that powerful shifts in their energy and open the doors to create a life changing miracles. Poonam, welcome to this podcast. Thank you. Thank you for such a lovely welcome, Anuradha. It's like Yes. back to the casual meetings ऐसे लग रहा है मुझे है ना? Yes. Lovely, lovely. Super excited, Poonam, to have you here. And what an inspiring journey, I would say. So, the very first question that comes to my mind is you mentioned that you were once a shy housewife. Yes. What was that exact turning point when you truly realized that your life was meant for something bigger? Yeah, my turning point was noticed by me in the corona phase, second wave. I was being hit by the corona and I was on the deathbed. I was on the oxygen mask. That was the time when I understood that though we have lot of support from medical team and we have so good doctors and everything is provided, even the oxygens are being provided if the patient is not being able to breathe, but actually those all things are artificial. And I just got that idea कि whatever it takes to be into natural state is like very good state, but if we need to cope up with the artificial things, it's very difficult. Though we know that the importance of oxygen was needed in the corona, but the body does not cope up with the artificial things for so many days, है ना? Natural चीजें, natural healing powers की क्या अहमियत है, that day I got to know and I came out of that dead bed that time. But later on I worked upon my breath work and everything, and I started my healing journey henceforth. Lovely, lovely, Poonam. All Yeah. right. So the next question I have for you is, uh, was there a moment when, fear almost stopped you from stepping into an energy healing? And what helped you to move forward any which ways? Like, experiencing that deathbed and then Yeah. taking this kind of decision. What would you like to share? Yeah, it's a very good question for me at least because my journey started from my anxiety panic attacks, है ना? Till Mm. that time I was dragging myself कि okay, I'll manage it, है ना? Thyroid हो गया है, okay, I'll take pills, I'll manage it. कम एज में arthritis हो गया, ओके, लेट्स वर्क ऑन इट। ये जब ड्रैग करते 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 आफ्टर कोरोना स्टेरॉइड्स लेने के बाद आई आई वेंट इनटू एंजाइटी पैनिक अटैक्स। दैट टाइम आई रियलाइज कि फियर इतना था मुझ में कि वो बस कोरोना की वजह से एंजाइटी पैनिक नहीं थे। इट वाज लाइक डीप इनटू मी फ्रॉम माय चाइल्डहुड, मे बी पेरेंट्स से आया होगा, वॉट एवर इट इज, बट यस, it was deeply rooted in me, and that particular emotion led to anxiety panic attacks finally. So Mm. that time I understood that this has to be worked upon. It's a deep rooted emotion, but this factor also helped me, मतलब यही फियर बाद में मुझे वो स्वीट फियर लगने लगा कि मैंने देख लिया है डेथ बेड, अभी फिर से उस सिचुएशन में नहीं जाना है। तो वो एक फियर मुझे बहुत आगे पुश
जोर से एक पुश लगाता था, मेरा वाई फैक्टर स्ट्रांग बन गया कि फिर से मुझे वो रॉक बॉटम हिट नहीं करना है किसी भी एरिया पर. नाउ आई नीड टू बक अप एंड मूव फर्दर. तो वो एक स्वीट पुश वो फियर की वजह से ही हुआ, बट आई चेंज्ड इट इनटू द स्वीट फियर. Great, great. Beautifully you said. Sweet fear. I really like that. Awesome. So, the next question I have for you is, how did your journey unfold step by step from being an homemaker to getting into an energy coach work, guiding thousands of women today? Yeah, finally I understood by coming under the powerful mentors. I would like to take name of Ritu Agarwal and Nikunj Agarwal. They are the whole soul of my life transformation journey. उनके अंडर जब मैं आ गई finally, then I came to know there were lot of Balpon movements, and when I understood कि surrender होके ही सारा कुछ होने वाला है. First thing I did कि surrenderness मेंटर्स के प्रति रखना एंड फॉलो देम स्टेप बाय स्टेप. धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आई अंडरस्टूड दैट this is like deeply rooted in me. Some things are deeply rooted that has to be worked on priority, but वो आसान नहीं है करना, है ना. तो पहले माइंडसेट बना दिया, फेथ आ गया थोड़े दिनों के बाद, कनेक्शन बिल्डअप मैंने बहुत अच्छा कर दिया अपने कम्युनिटी के साथ, अपने मेंटर्स के साथ. तो पक्का मुझे यकीन था कि मैं अभी हिलूंगी नहीं, इस जगह से हिलूंगी नहीं. देन फाइनली आफ्टर मेकिंग द माइंडसेट आई स्टार्टेड अपॉन द हीलिंग जर्नी. एंड वंस द हीलिंग जर्नी वाज स्टार्टेड, आपको पता है कि हीलिंग जर्नी मैजिकली आपको हर एक चैप्टर्स खुलवा देती है, हर एक चैप्टर्स के पन्ने खुलवा देती है. तो धीरे धीरे ऐसे ही फ्लो फ्लो में आई कुड गो अहेड एंड बैलेंस माय ऑल 6 एरियाज. मैं आई थी हेल्थ के लिए, बट आई वर्कड ऑन ऑल द 6 एरियाज फाइनली. Beautiful, beautiful, amazing. Yes. And of course, even we share the same mentor together. या या So we can't say that, the transformation happens inside out, right? इनसाइड We have आउट. यस. experienced that, and so I always owe it to them as well. Yes, you Lovely. just need to be under their shelter, that's it. Make your. Absolutely. And one of the word you beautifully brought here is surrender. Yeah. I truly feel that nowadays, lot of people who are looking out for a quick fixes, Yeah. but there's no quick fix. It's the transformation happens when you connect to your own self, right? Yeah. And that is how it starts showing up in your day-to-day life, right? Yeah. And it only happens when you hold your mentor's hand, and the community plays a very good role. Not only Absolutely. mentors, but Yes, community. Yes. I absolutely. owe all the credit to my community members and my mentors. That's for sure. Great, great, lovely. So the next question I have for you is, um, many people feel stuck, but they don't really understand what does the low energy frequency actually means, and how can someone recognize this into their day-to-day life? Actually, low energies are invisible and noticed by everyone. That's for sure. But the problem is they won't accept कि कहाँ से हेल्प लेना है. उनको हेल्प नहीं लेनी होती है. दे वांट टू ड्रैग इट बाय देयर सेल्फ, है ना. बहुत रिजनमेंट्स होल्ड कर रहे होते हैं वो बहुत सारी पहले ही, और किसी और का सुनना मतलब वो बड़ा चैलेंज है. तो आई थिंक दे नो एवरीथिंग. whenever there are trigger points, or maybe whenever they are into low energies, everyone comes to know, but they do not want to change their pattern or maybe take help from others. ये मुझे दिक्कत दिखती है, because I have seen so many people, I have done so many one on ones. तो विजडम तो बहुत लोगों के पास है, बट दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट एंड टेक हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स. वैल्यूज मैच होने चाहिए, तब जाके ये लोग सरेंडर करेंगे. True, true. Yes. And I think it should be done again. The same advice I would like to go. अगर एक दो वैल्यूज भी अगर मैच हो रहा है किसी मेंटर के साथ, तो पक्का यू शुड गो
एंड लीव विद देम, मतलब आपको बस उनकी एनर्जीज में रहना है। इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में की बात है, बट यस, एटलीस्ट ट्राई टू बी अंडर देयर शेल्टर इनिशियल पीरियड पर। Absolutely, absolutely. So, the next question that comes to my mind is, what emotional block do you see that most women carry silently, especially homemakers or working women who are, trying to balance everything? Everybody wants that perfect balanced life. Yes. uh, Again, once again, the same observation from my side that from the earlier stage itself, मतलब बहुत सालों से हमने देखा है, इवन आर पेरेंट्स यूज टू बैलेंस एवरीथिंग, है ना। इतना कुछ स्कोप नहीं था, बट दे वर डूइंग टू मच, है ना। घर का भी काम कर लेते थे तो बहुत पैमाने में कर लेते थे। तो एवरी वन हैज दैट कैपेसिटी टू गो बियॉन्ड एंड डू दैट पर्टिकुलर वर्क एंड फिनिश इट ऑफ, बट ये काम सिर्फ काम ही हो रहा है अभी के फिलहाल सिनेरियो में। जो जब मैं देख रही हूँ सारे वुमेन्स बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बैलेंस, उनको पता है कि बैलेंस के सिवाय कुछ नहीं होने वाला है। they are doing also, they have capacity, they are doing also, but later on they are not into completion energies। जितना वो कर रहा है उतना ना क्रेडिट दे पा रहा है, ना खुद को संभाल पा रहा है, ना खुद को पेडिस्टल पर रख पा रहा है। दे ऑलवेज नीड appreciation or maybe the rewards from the outer world। वहां पर गलती हो जाती है। तो ये गलती मैंने नोटिस मुझ में भी की थी, एंड आई रेक्टिफाइड इट, एंड आई डेली मेक श्योर कि आई पुट माई सेल्फ हियर एवरी डे by acknowledging all my wins throughout the day। and जो कुछ भी जितना भी कर पाती हूँ बहुत अच्छी तरीके से उनको acknowledgement देती हूँ, celebrate करती हूँ wins को। तो that thing is missing, I guess। I think everyone has the capacity, but the completion energies is missing right now। Absolutely. And one of the things just want to add to what you beautifully said is, yes, we all have that energy, we all have that capacity, but despite of doing everything, we look out for the appreciation from others. We look out, when are we getting praise from others? So Yeah, that is something which I truly feel is lacking in every woman. And why not women can't appreciate themselves? themselves, When yeah, you are doing so many things, you're bound to appreciate your own self, right? And yes. that small celebration leads to bigger results. I definitely feel that. Yes, but this was not taught by anyone. This is not Absolutely. into the conditioning of any of the women or men। तो वो डिफिकल्ट है, इसीलिए एक्सपर्ट्स बैठे हैं वहां पर। जाके अगर सरेंडर मोड में आ जाओगे तो यू विल लर्न ईच एंड एवरी स्किल। दीज आर जस्ट अ Absolutely. स्किल सेट, वी हैव टू जस्ट लर्न इट। Absolutely, it's a learnable skill. Beautifully said. All right. So now let's jump into this question I have for you is, you practice Ho'oponopono, different modalities like NLP, chakra healing, EFT. According to you, as far as you have been practicing this for so long, which method creates any kind of a fastest and deepest transformation in what situation? Because I truly feel that a lot of people, they really want quick results, quick change, quick transformation. So what is your take on this? Yeah, according to me, my journey started with the chakra and Ho'oponopono। Hmm. These two techniques gave me lot of relief from my symptoms, also body symptoms। Hmm. uh, Chakra actually works magically to actually work on your deep rooted symptoms also। मतलब समझ रहे हो ना, आपको भले आप बहुत सारी चीजें ना बहुत दिनों से चलती आ रही होती, वो इतनी जल्दी जाती नहीं है। जैसे कि पैल्पिटेशंस ले लो, ट्रिमर्स ले लो, बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो इतनी जल्दी जाती नहीं है। उसके लिए चक्रा बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। Hmm. डीप रूटेड चक्रा से आपको हर एक चीज एनर्जी बैलेंस करने मिल जाती है। Ho'oponopono is a fantastic, easiest, simplest way to release the work। वो आप चलते फिरते भी कर सकते हो। You have to just put an intention for the releasing work
एंड जैसे ही आप उसमें मास्टरी कर लेते हो कि एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है ना अपने थॉट्स को जो आप क्रिएट करते हो, जैसे कि बहुत सारे इमोशनल फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स जो हमें एम्पावर नहीं कर रहे हैं, वो नीचे गिरा रहे बेसिकली, Yes. उनको एक्नॉलेजमेंट देके उनको सही तरीके से हटाना, वो हो पोनो रिलीजिंग वर्क ही करता है। एंड दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग विच आई हैव डन द मास्टरी ओवर इट। उसके बाद अगर कुछ है तो वो एनएलपी। एनएलपी जो लॉजिकल ब्रेन वाले होते हैं, है ना, माइंडसेट बना बना के बहुत मैजिक क्रिएट करना होता है उनको, ना कनेक्शन होता है मेडिटेशन से ना किसी चीज से, जल्दी विश्वास नहीं रखते हैं, तो उन लोगों के एनएलपी इज द बेस्ट। एनएलपी ऐसा टूल है कि आप माइंडसेट स्ट्रांग बना के ना खुद के माइंड को रामू काका बना सकते हो। इतने दिनों से ही यूज्ड टू ऑर्डर, माइंड यूज्ड टू ऑर्डर एंड वी यूज्ड टू dance Yeah, on behave its, accordingly. yeah. Yes. But right now I understood कि we have to take charge and we have to train the mind. तो NLP works beautifully when you set the mindset, रामू काका माइंड को बना के रखना है, then you have to just command and the result will be coming from the mind, brain and body parts, whatever it is. एंड EFT आप कभी भी, जैसे बहुत ही तकलीफ हो रही है, ऑन द स्पॉट आपको अगर कुछ रिलीफ वर्क चाहिए तो टैपिंग वर्क्स वेरी नाइसली, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो Mm. दीज 4 टेक्निक्स आर वेरी ब्यूटीफुल, आप कभी भी कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके लिए यू नो उसके लिए भी डीप सीखना बहुत जरूरी है, डीप स्टडी की बहुत इम्पोर्टेंस है, ये डीप जाकर सीखना। एंड you need to handhold any one of the mentor and go deep within all these tools. Absolutely, absolutely. And one of the thing I also want to add here is that the transformation is inner transformation. It's not an Yeah, outer transformation. So first is surrender is something in whatever you do. Any practices you yeah, follow, and it is your belief that what, I'll change it. No matter, I'll change it. yeah, Yes, these two things plays a very, very very important important. role in having said that, energies will definitely work for you when you have this set of intentions alongside. Yes, willing to change. That should be Absolutely. your, the beginners have to just declare by saying that I am willing to change. That will Yes. create a great magic in your life. Start declaring at least. शुरुआत वहां से ही होती है. Absolutely, absolutely. So, Poonam, the next question I have for you is what truly, truly inspired you to start getting people in choosing and getting into the world of crystals? Yeah. What was that story? We would really like to know. Uh, for that, you are guiding people, right, in choosing the right crystals for their personal healing journey. So, yes, we would like to know a backstory for this. Yes, it's really a magical journey for me to come into the crystals world. But it started because of my community members. I have built a good rapport with all the energy queens. My community name is Energy Queens Hub. So all the energy queens are always helping each other. तो जब एक 2-3 क्वीन ने जब मुझे समझ के ले लिया कि शी इज वेरी गुड सोल, वो बहुत प्योर सोल है, एंड उनके एनर्जीज इतने प्योर है कि जब वो हीलिंग करती है बहुत अच्छे से, उनकी हीलिंग सब तक पहुंच जाती है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि क्रिस्टल्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, बिकॉज क्रिस्टल्स सबके घर में जाने दो, आपके हाथ से जाने दो। दीज वर द वर्ड्स फ्रॉम माय क्वींस। एंड दे थॉट कि आई हैव पावर्स। सो अच्छी तरीके से काउंसलिंग करते 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 हमें अभी आदत हो गई है सबको सुनने के लिए, सबका सुनने के लिए, वी कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न वेरी इजीली। तो Yes. अच्छी तरीके से अगर किसी को जान पाएंगे, प्रॉपरली डिगिंग वर्क करेंगे, एंड वी हैव दैट सेंस विजडम नाउ कि इतना सारा कुछ काम करके कोचिंग इंडस्ट्री में वी कैन अंडरस्टैंड दी व्हाट शुड बी डन ऑन प्रायोरिटी।
मतलब क्रिस्टल्स हर बार कोई भी जब ऑर्डर करता है वो रैंडमली कहाँ से भी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं कि लव एनर्जीज का ये क्रिस्टल अच्छा लग गया तो ये मंगवाना है, या फिर थोड़ा बहुत जो नॉलेज होता है वहां से आप लोग ऑर्डर कर लेते हो, बट that is not the correct way. First we have to know about yourself properly, digging होगा clarity call पे, एंड सजेशंस उस टाइप के ही होते हैं कि कौन सा क्रिस्टल पहले देना है, ऐसे नहीं हो सकता कि लव एनर्जीज मिसिंग है तो तुरंत रोज क्वार्ट्ज देना है। माइलस्टोन है तो इतनी जल्दी वो काम भी नहीं करेगा, बट हाँ अगर रूट कॉज पता चला तो पहला क्रिस्टल उसके लिए जाना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है एंड उसी टाइप के सजेशंस हम लोग देते हैं। एंड आई हैव अ वेरी गुड back support from the all crystal healers also from my community. So we are collaborating and we are doing it, and हम लोग उसी टाइप का अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज भी कुछ देना चाहते हैं क्लाइंट को, then we are suggesting it, we are giving whole package healing tools. All right, great. You Yes, want to and add anything? crystals actually worked magically into my life, then only I jumped into it. वही होता है ना, जब पहले खुद के घर में कुछ मैजिक हो जाए तभी आप दूसरों के घर में मैजिक क्रिएट करने चल पड़ते हो। तो मैंने देखा है क्रिस्टल्स कितनी बहुत डीप तरीके से मैजिक क्रिएट कर रहा था मेरे घर पर भी। समझो कि एंसिस्ट्रल का पैटर्न हो, कार्मिक पैटर्न हो, या फिर हमारे इमोशंस के ऊपर कुछ काम करना हो, स्विच करना हो किसी फीलिंग को, तो क्रिस्टल्स हैव प्लेड अ वेरी गुड रोल। लेटर ऑन जो ये लोग बोलते हैं ना कि मनी के लिए ये चाहिए वो चाहिए, मतलब ये सारी चीजें बाद में होती है। वंस यू वर्क ऑन योर सेल्फ ये रिवॉर्ड की तरह पक्का आना ही है, बाकी सब सक्सेस रिवॉर्ड्स, पैसा, ये सारी चीजें। बट यस, ओपन रहना क्रिस्टल्स के मैजिक के लिए, इट्स लाइक प्योर इंट्यूटिव बेस्ड लेवल लर्निंग। एंड जब हम इंटेंशन क्रिएट करके एनर्जाइज करके जब हीलर देता है अपनी प्योर इंटेंशन के साथ, आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी मेजर पार्ट। मतलब कहाँ से भी क्रिस्टल ले लो, बट द हीलर्स इंटेंशंस मैटर अ लॉट, उनका जो जजमेंट Absolutely. होता है। Yes, यस। yes. So just to add on to here, and I want to ask you that you just said that money, love, everything is external and that will keep coming. But there are certain root cause where people don't understand. You brought this up, ancestors. There are ancestors, there's karma, a lot of things, and there are some people who don't even know that why I'm not getting success, what's happening in my life, why is my life so messed up. So when you say that certain crystals work on this part also at a deeper cause, would you like to show little light upon this, that what kind of crystals do you suggest and how do you make sure that that for this ancestor healing, this is a right set of crystals for somebody? Yeah, right now I would not like to share और नेम्स ऑफ द क्रिस्टल्स, बिकॉज सब अलग अलग परसेप्शन लेकर आएंगे। जब तक प्रॉपर क्लैरिटी कॉल नहीं होगा उनके साथ, आई वुड नेवर सजेस्ट देम एनीथिंग। तो नाम तो नहीं लूंगी पर्टिकुलर कोई क्रिस्टल का, बट यस, भले कोई आपको क्रिस्टल सजेस्ट भी कर रहा होगा, बट आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दैट मैजिक इनटू द लाइफ? तो बड़े महंगे वाले क्रिस्टल्स लेकर भी कुछ फायदे नहीं है, है ना। तो हर बार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ही यहाँ पर भी काम होने वाला है। Hmm. आपका जो रूट कॉज है वहां से शुरुआत होती है। लेट दी फर्स्ट टू क्रिस्टल्स फर्स्ट क्रिएट द फर्स्ट ब्लॉक, क्लियर द फर्स्ट ब्लॉक, है ना। थोड़े दिनों के बाद द पर्सन विल बी रिसेप्टिव टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ द क्रिस्टल्स मैजिक, है Yes. ना। कनेक्शन बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे वो हमें भी पता चलता है कि नाउ व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्रिस्टल विच हैज टू बी देयर इनटू देयर लाइफ, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे वी एक्चुअली सजेस्ट। एंड पहले वक्त तो हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली उनको क्या क्या क्रिस्टल्स की जरूरत है, बट एक साथ अगर भेजूंगी तो सब मैसअप हो जाएगा ना। उनको उनका जो
रिजल्ट मिल रहा है वो नोटिस में वो ला नहीं पाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट द हीलर्स और दे आर नॉट इनटू अ कोचिंग जर्नी, और दे आर नॉट बीन हेल्ड बाय एनी ऑफ द मेंटर ऑल्सो कि स्टेप बाय स्टेप उनको हम लोग गाइडेंस दे पाएंगे। सो क्रिस्टल के लिए पहले समझाना उनको बहुत जरूरी है, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ही शायद उनको रिसेप्टिविटी उनकी बढ़ सकती है ना, धीरे धीरे वो चीजें काम करने लगती है। बट हाँ, सबके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, उस तरीके से ही क्रिस्टल सजेस्ट किए जाते हैं। कई क्रिस्टल सबको सूट नहीं होते हैं, कई क्रिस्टल माइल्ड होते हैं, कई क्रिस्टल हैवी वाले होते हैं। तो हर एक चीज को परख के we need to give the suggestions, so you need lot of consultation from the healer. All right. Yeah. Jumping to the next question, what motivated you to start creating emotional healing package when you're saying? So you brought up this beautiful bath salts. You brought up the healing candles together. So Yeah. what was the idea of doing so? Yeah, once I attracted the healing journey, है ना, तो I mastered each and every modality. Then later on, again, the crystals came into my life because of my friends. So everything was falling on place. But when I started giving the counseling, free counseling for the crystal consultancy, I could understand as they were not into the transformation journey, तो एक क्लैरिटी कॉल पे ऐसा कुछ बड़ा मैजिक नहीं होने वाला था। उनको नॉन स्टॉप एक पुश की जरूरत होती है ना, हर एक मुकाम पर उनको होल्ड करना पड़ता है कि आप इस वक्त ये कर सकते हो, ये थॉट आएगा तो आप ये कर सकते हो। मतलब हर एक छोटे मोटे टूल्स से हम लोग उनको निकाल सकते हैं। तो एक या दो सेशन से ऐसा कुछ बड़ा मैजिक तो नहीं होने वाला है, फिर ना ही वो क्रिस्टल्स मैजिक करने वाला है कुछ, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी लूप में होता है। देन आई रियलाइज कि जब इजी वाला टूल है बाथ सॉल्ट, जो मैं खुद यूज करती थी, आई यूज टू फील ड्रेन्ड आउट आफ्टर हैविंग लॉट्स ऑफ क्लैरिटी कॉल थ्रू आउट द डे। रात में एकदम ड्रेन आउट हो जाती थी। देन आई यूज टू टेक बाथ, है ना, बाथ सॉल्ट से मैं जब नहाती थी पहले, तो अलग वे में कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती थी टू हील एंड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। बट वेन आई अंडरस्टूड कि यहाँ पर अगर बाथ सॉल्ट में ही सारा कुछ मिक्स कर दिया जाए तो एक ही बात में सारी चीजें रिलीज हो सकती है, स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग वर्क हो सकता है, ऑरा अच्छी तरीके से क्लीन हो सकता है। तो when I used, again I launched it into the society. मुझे मदद करने वाले भगवान ने बहुत सारे लोग भेज दिए हैं कि they are actually giving me that services, कस्टमाइज करके दे रहे हैं जो मेरा नीड है as per the client। तो उस प्रकार के फ्रैग्रेंस, उस प्रकार का कलर, ऐसे सारी चीजें यूज करके I am creating that energized customized products, bath salt and healing candles, जो क्लाइंट को लगेगा वहां पर वो पहुंच जाएगा। बिकॉज इट्स द इजिएस्ट वे टू डिटॉक्स योर बॉडी, इमोशन डिटॉक्स जो बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने स्किन केयर रूटीन, ब्यूटी केयर रूटीन के लिए प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे, बट नो वन इज बॉदरिंग अबाउट द इमोशनल डिटॉक्स रूटीन जो रोज के रोज होना चाहिए। तो दिस इजी टूल विल हेल्प देम, पैसिवली हेल्प करेगा कि वो रिलीजिंग वर्क करे अपना। Great. All right. Yes. So one of the question I also have is for you especially, what belief about yourself did you have to completely release on this journey? Um, starting from deathbed to healing yourself to having this transition. I mean, it is such a beautiful journey where you say that I was just a housewife and today you are a mentor, right? You are getting into your work of crystals, you're getting into a work of creating the healing equipments which people really want. What is that insight would you really like to share with each one of us? And we all know that you have also received your Diamond Imperial Award, right? So I think we all have spent more than 3-4 years 4 years, to be on this path, right? So what is that you really want to share
which is stepping into a role of everything that you're doing today? Yeah. This question can be answered in very long way, but yes, keeping it short. For me, being a typical housewife, it was very difficult to come out of that identity for many years. But still, I was again dragging, क्योंकि आदत है सब कुछ ड्रैग करके, है ना, हिम्मत करके, नहीं नहीं अभी तो कर दिखाना है, एंड कर लेंगे उस टाइप का ड्रैग करके थोड़े दिन चला. बट आई अंडरस्टूड कि ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, ये ड्रैग वाली चीज है ना, कि वो टेम्पररी होता है, सुपरफिशियल लेवल पर मोटिवेशन होता है. बट आई अंडरस्टूड एंड देन आई केप्ट माई सेल्फ वेरी ऑन साइलेंट मोड, आप बोल सकते हो. बिल्कुल मैंने कंप्लेन मोड, विक्टिम मोड, पिटी पार्टी, है ना, वो जो ब्लेमिंग कंप्लेन सब कुछ बंद कर दिया. एंड आई स्टार्टेड साइलेंटली वर्किंग ऑन माई सेल्फ. ऐसा नहीं है कि इसके बाद एकदम मैजिक क्रिएट हो गया एंड एवरी वन वॉज देयर फॉर मी, एकदम रेड कारपेट बिछा के, ऐसा कुछ नहीं था. बट देर वेर सब मिसअंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कि क्या कर रही है, मतलब वी आर नॉट गेटिंग वॉट यू आर डूइंग. बट स्टिल आई न्यू कि ये चीज ना मुझे भगवान सिखा रहा है. अगर अभी नहीं सीखूंगी तो और एक बॉम्ब गिर जाएगा. इंस्टेंट कि मैं सरेंडर मोड पे आ जाती हूँ एंड पूरा डीप जाके सारी चीजें मैं सीख लेती हूँ. एंड वंस दी एवरीथिंग इज डन, आई न्यू कि उसके बाद हर किसी का एक्सेप्टेंस आने वाला था. सोसाइटी से भी एक्सेप्टेंस आ जाता है, सब लोग तारीफ करने लगते हैं. तो वो ऐसे ही हुआ कि व्हेन आई वर्कड प्रॉपरली डीपली, वो चीजें होने लगी, उसके रिवॉर्ड्स मिलने लगे, बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे, मनी का फ्लो शुरुआत हो गई. आई स्टार्टेड लिविंग माय पैशन पर्पस, जो शायद ही किसी औरत को पता होता है ना, मुझे तो नहीं पता था. बट व्हेन आई केम इनटू दिस जर्नी, आई अंडरस्टूड हॉबी और पैशन का डिफरेंस भी क्या होता है. तो बहुत सारे बलपॉन मूवमेंट्स हुए थे. तो ऐसे ही एक बिलीफ हमेशा मेरा था कि शायद आई एम अ गुड सोल, बट आई डोंट हैव दैट मच पावर्स टू लीड अ पावरफुल लाइफ. मैं थोड़ा बहुत अच्छा कर लूंगी, बट बहुत बड़े पैमाने में शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. ये हमेशा लगता था कि ऐसा क्या ही मैं उखाड़ लूंगी, थोड़ा थोड़ा कर लूंगी. बट नाउ आई कैन सेंस कि जब विलिंगनेस हम लोग दिखाते हैं, हर बार डिक्लेरेशंस होता है कि आई एम ओपन फॉर माई ग्रोथ नाउ, कि बाकी का लॉजिक सब बंद कर देना है, तो अपने आप ही रास्ते खुलने लगता है, सपोर्ट सिस्टम खुल जाता है, यहाँ वहां से सपोर्ट मिलने लगता है. तो वैल्यू करना मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है. मैं हमेशा वो रिजिडिटी नहीं दिखाती हूँ कि यहाँ से ही मुझे सपोर्ट चाहिए, इस बंदी से ही सपोर्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम गोइंग विथ द फ्लो, कि जहां से मिलता है वहां पर बहुत वैल्यू करके आगे बढ़ रही हूँ. एंड एवरीथिंग इज फॉलोइंग ऑन प्लेस ओनली बिकॉज ऑफ द बिलीफ सिस्टम कि if God has chosen me after showing so much of destructive level into each and every area, तो पक्का ऊपर का कुछ मेरे लिए रखा है. यही बिलीफ लेकर मैं आगे जा रही हूँ. एंड आई नो कि ये सारी चीजें ना बोलना आसान है, बट वो मेंटेन करना, वो बिलीफ को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है. But again, I would like to suggest each and every fellow audience over here that please have a mentor in your life. फिर एक mentor का अगर आप सुनोगे, and the community plays a very important role, जहाँ से support मिलता है, आपको संवारा जाता है, तो ये सारी चीजों से आप कर लोगे अपनी जर्नी. ऐसे नहीं है कि एकदम से सबको ही रिजल्ट मिल जाता है, बट हाँ, जितना एफर्ट डालोगे उतना रिजल्ट पक्का मिल जाता है. आपको संवारने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं. तो यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, एवरी वन इज देयर नाउ. द एक्सपर्ट्स आर इन टू द इंडस्ट्रीज. पहले तो ये सारी चीजें अवेयरनेस में भी नहीं आती थी. Yes. लोगों को लगता था कि एंजाइटी डिप्रेशन वाले लोग ही आगे जाना चाहिए टू seek help from life coaches or energy coaches. But this is a special request from my side कि हर एक मैन को, वुमन को ये चीज सीखना ही है, बिकॉज वी आर गोइंग टू पास दिस इंफॉर्मेशन टू आवर नेक्स्ट जनरेशन. एंड ये सारी चीजें ना एक्चुअली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है हमारे बच्चों के ऑरा पर.
So now buck up everyone. Everyone should know the universal laws. You have to learn everything and live according to it. तो पक्का मैनिफेस्टेशन ले लो या फिर आपके है ना टारगेट्स है वो सारे हिट हो जाएंगे एंड यू विल लीड अ हैप्पी लाइफ. मतलब हैप्पी लाइफ के सारे डेफिनेशन सबके लिए अलग है, आई नो इट. बट yes, you will start evolving and start satisfying your soul, which is more important than any of the targets. All right, super. So, Putam, we have few rapid fire questions for you, and I really want you to answer them rapidly. All right, the first question I have for you is your favorite way to instantly raise your vibration? I think I start declaring Declaration. wherever I feel low कि ऐसे मतलब बहुत ही अनईजी लग रहा है, मैं तुरंत उसके ऊपर उल्टा बोल के डिक्लेयर करने लगती हूँ. डिक्लेरेशंस अफर्मेशंस दोहराना विथ फुल एनर्जेटिक वे, वो मेरे लिए तुरंत उस मोमेंट पे एनर्जेटिक बना देता है. All right. Uh, one affirmation you keep repeating most of the time. My favorite one, always I say, I am open for everything. I just accept it. I am open and receptive to receive all the abundance from all the directions. Lovely. Yeah. One word that describes your energy today. I am always natural, raw, authentic. That's what I can say. मैं कुछ preparations करती नहीं हूँ. बस आज की एनर्जी भी वैसे ही थी कि Super. Uh, natural. one habit that has completely changed your life. No complaint, no blaming. That's what the first thing I did when I came into the transformation journey. All right. Super. Thank you so much, Poonam, for answering these questions. We still have few questions for you. What does tiny miracle actually look like in a real life? Something simple but powerful people can experience quickly. Yes, Tiny Miracles is very close to my heart. ये randomly मेरे मन में ख्याल आया था कि let this be my Instagram ID, Tiny Miracles. क्योंकि मुझे उस वक्त लग रहा था कि मेरे पास ना कुछ बड़ी चीज ही नहीं हो रही थी जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आई थी. आई कुड रिमेम्बर कि लोगों को बहुत जल्दी जल्दी कुछ कुछ मिल रहा था एंड एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग इट. कि तो मैं कभी लो स्टेट में नहीं जाती थी कि यार मुझे क्यों जल्दी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब. बट आई अंडरस्टूड मेरी जर्नी बहुत ही डीप रूटेड है. मुझे स्टेप बाय स्टेप ग्रेसफुली टाइनी टाइनी थिंग्स को सेलिब्रेट करते हुए ही खुद को पक्का बना के रखना है यहाँ पर इस जर्नी में, एंड धीरे धीरे एवरीथिंग विल फॉल डाउन. ये मेरा बिलीफ था उस वक्त से, एंड आई वॉज लविंग टू एंजॉय द टाइनी टाइनी विंस इन टू माई लाइफ थ्रू आउट द डे. एंड वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि ये सारी चीजें मैं सबको टीम्स में टीममेट्स को बताती थी. एंड मैंने इंस्टाग्राम का आईडी ऐसे ही खोल दिया था कि टाइनी मिराकल्स के नाम से. And now this has become the brand of my products also, and I am running the big WhatsApp group also for the healing sessions. Non-stop वहाँ पर healing sessions होते हैं. Yes, with due respect of my mentor's help, I am doing all these things. But Tiny Miracles ये नाम इतनी जल्दी सबको भा गया कि everyone started learning to celebrate the tiny tiny wins, tiny tiny miracles into their life. तो ये बहुत बड़ा tool है actually. But yes, I hope this creates lot of magic in everyone's life. This word creates lot of magic. Super. So, if someone wants to attract healing, confidence, opportunity, starting today, I don't know, people, if they're going to, whenever they're listening to our podcast, what is that one simple ritual they can begin immediately? Yes, first try to introspect yourself after throughout the day. 2-2 आवर्स के बाद आप लोग इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो. ये शायद ही कोई करता है, बार बार बताया जाता है बट शायद कोई करता ही नहीं है ये चीज. सबको बड़े बड़े टूल्स और टेक्निक्स के
यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाता है कि ये सीखना है वो सीखना है, बट दिस इज द फर्स्ट इनिशियल रिचुअल, सिंपलेस्ट रिचुअल विच द बिगनर्स हैव टू डू, कि पहले खुद के ऊपर पीएचडी करना स्टार्ट कर दो। ये यहाँ से ही शुरुआत होती है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने फीलिंग्स के ऊपर ध्यान रखना है। एक्चुअली व्हाट ट्रिगर्स यू, बेसिकली ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। भले आप बहुत कुछ कर रहे होंगे ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ, आई नो फ्यू थिंग्स, आई डू इट, बट स्टिल इफ यू आर ड्रेनिंग आउट, तो वो एनर्जी लीकेजेस कौन कौन से वो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक सारी चीजें इंट्रोस्पेक्ट करना और उसको वहां के वहां ही तुरंत पकड़ के उसको चेंज करना, शट अप बोलना खुद को आना चाहिए। ये बेसिक रिचुअल है जो आप दिन भर में आप कर सकते हो, ताकि आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ मिले, कि उसके इसके ऊपर फिर काम करना है ना, पैटर्न्स के ऊपर फिर काम करना होता है, फीलिंग्स के ऊपर फिर काम करना होता है। तो दिस इज द बेस्ट रिचुअल विच आई थिंक द न्यू बिगनर्स कैन बिगिन विथ। Lovely. Uh, if someone feels that they are ready for a change, right, but they really don't know where to begin their healing journey, there are possibilities that they don't know whom to approach. What is the first step would you like to suggest for them to do? अभी फिलहाल तो मार्केट में बहुत सारे कोचेस है, आपको एन नंबर ऑफ कोचेस मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे, बट अगर डीपली अगर आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हो, एंड दिस हैज टू बी डन ऑन प्रायोरिटी, ये पहली स्टेज होती है जब आप खुद के ऊपर काम करते हो, तो एनर्जी कोचेस और जो हम लोग कोचेस खुद को बुलाते हैं, आप ऐसे कोचेस के पास जा सकते हो, हमारे पास आ सकते हो। वी आर ओपन टू गाइड ईच एंड एवरी मेंबर, ठीक है? तो कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। Just feel connected with one of the mentor or coach and try to have a clarity call at least, ताकि एक पैटर्न तो समझ में आ जाए आपके लिए क्या जरूरी है, आप कहाँ पर जा सकते हो। टेक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस एंड किसी के मेंटर के अंडर शेल्टर में रहो बहुत दिनों तक, देन यू विल अंडरस्टैंड द लेटर पार्ट ऑल्सो कि क्या एग्जैक्टली exactly करना है। सो बेसिकली यहाँ वहाँ बिजनेस कोच और बाकी के चीजों पर अगर ध्यान दोगे तो वो तो बाद में लगेगा, है ना? बिजनेस और क्लैरिटी ये सारी चीजें बाद में मिलती है, बट उसके पहले खुद के ऊपर काम करना, सेल्फ डिस्कवरी अपनी खुद की करना, वैल्यूज खुद के जानना, पैशन को जानना, उसके ऊपर जीना भी तो है, बस जान के क्या करना है ना। अपने बिलीफ सिस्टम को जब आप देखते हो कि ये बिलीफ अच्छा नहीं है, ये बिलीफ एम्पावरिंग नहीं कर रहा है, तो उसको चेंज भी तो करना है, कि सब जानकारी हासिल करके फिर से वहां पर ही बैठना है। तो ये सारा चीज आप कर सकते हो ओनली थ्रू दी गाइडेंस। तो एक्सपर्ट्स बैठे हैं मार्केट में, बस आपको जाके अप्रोच करना है। तो एटलीस्ट एक स्टेप तो अहेड आ जाओ। जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि इट्स नॉट ओनली फॉर द मेंटली रिटायर्ड पीपल। आपको ऐसे लग रहा होगा कि, है ना, कि सिर्फ जो डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होते हैं, उन्हीं को ही ये सारी चीजें सीखनी है। नो, नेवर। ये हर ह्यूमन बीइंग को सीखना है। इट्स दीज आर द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। आपको हर एक चीज सिस्टमैटिक वे में सीखनी है, तो यू कैन अप्रोच एनी ऑफ द कोच। All right. So Poolam, I still feel that world is changing, women's are changing. We see a lot of women showing up for themselves, and there are still a part of a woman who have literally shut down themselves in that four walls. Not knowing what exactly they're doing, but every single day they're feeling from inside they're dying every single day, right? They're living for Yeah. others, but they're not living for themselves. What is that one message from your heart would you like to share to all those blessed souls out there? वुमेन एक्चुअली आर पावरफुल। ये तो मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है, ये सबको पता है कि वुमेन आर पावरफुल। दे हैव दैट पावर्स, एक्स्ट्रा कैपेसिटी से भी कुछ काम कर सकते हैं, वो उनमें क्षमता है। बट
वो जो बदलने की चाह होती है ना, बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग की, बहुत फियर है, बहुत बर्डन्स है, बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है वुमन को, बिकॉज वी ऑलवेज फील कि हम लोग जब फैमिली के साथ होते हैं, जब फैमिली एक वुमेन के साथ होती है, तभी वी फील कंप्लीशन एनर्जीज। तो ये सब अभी बंद करके, एक पहले से ही बच्चों के दिमाग में भी शायद हमें सीडिंग करना है कि इट्स नॉट ओनली कि फैमिली होने के बाद ही कंप्लीशन एनर्जीज आती है वुमन में। शी इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो ओनली शी गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड, है ना। मदरहुड का पहले से ही इनबिल्ट और क्वालिटीज है उनमें, बट वो चीज एक्सेप्ट करना पहले से ही, और उसको लेकर आगे बढ़ना, वो जो पावर्स लगते हैं लेकर आगे बढ़ने के लिए, वही पावर्स को लेकर आगे बढ़ने के लिए जो पावर्स लगते हैं, वो अकेले बंदी से नहीं होगा। मैं फिर से ये दोहरा रही हूँ। लोगों को लगता है कि मैंने बहुत, है ना, बहुत सीखा है, मैंने बहुत बुक्स पढ़े हैं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, या फिर ऐसा कुछ उनको लगता है कि आई नो द वर्ल्ड बेटर। ऐसे वाले जो लोग होते हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द संगत एंड द मेंटर। उससे ही सक्सेस के पाथ पर आप चल पाओगे। बड़े बड़े भी जो चीजें हुई है सक्सेसफुल पीपल के साथ, उनके भी अगर इंटरव्यूज आप सुनोगे, उन्होंने एम्पायर अपना खुद से, अकेले से, या फिर फैमिली मेंबर्स की हेल्प से नहीं बनाया है। So it's about the mentor and the knowledge and the community। जो बोलते हैं ना संगत का असर, वो जो पावरफुल लोगों के साथ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक ये सारी चीजें करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस ले लो, तब जाके बहुत टाइम पास नहीं होगा। अभी क्या हो जाता है, सब अपने अपने लॉजिक से चलना शुरुआत करते हैं, अपने सक्सेस के पाथ पर चलना ऑलरेडी उन लोगों ने स्टार्ट किया है अपनी अपनी तरीके से, बट वहां पर बहुत देर लग सकती है, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज और एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की। बट एक्सपर्ट्स आर देयर बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल द रॉक बॉटम एंड एवरीथिंग दे हैव सीन। तो उनके पास एक्स्ट्रा चीजें पता है उनको, है ना, कि कैसे ये सारी चीजें टैकल करके हमें आगे ले जाना है। So this is the final advice to all the women and male, कि please take help from experts and then sail out. Super, super amazing, Poonam. Thank you once again for being here today. Thank you so much for sharing your valuable insights. Yeah. Truly, truly loved you being here today, and wishing you lots and lots of success in whatever you do. May your tiny miracles grow bigger, 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 and the kind of a work you're doing by, bringing on the healing things together. Yeah. Yes, may you receive lots and lots of success for this new venture also. Yes. That's the only wish I have for you today. Yes, I am open to receive it right now, and I know it's coming from my lovely friend. So, pakka, we all are going to rock, है ना, in this field. So thank you so much for giving me this platform. Because of these kind of platforms, we are able to showcase our strength, our knowledge, and our services. So thank you, Anuradha, for being so consistent in making such lovely podcasts. तो ये सबके बस की बात नहीं है, and you are doing a very lovely job, doing so much of work, multiple tasking, सारी multitasking चल रही है आपकी. Thank you so much. Thank you, dear. Thank you. If you enjoyed this conversation, don't forget to like, share, and subscribe to my podcast and share it with your friends and family, one woman at a time. I'm on a mission to build a community of a thriving women. Thank you very much for taking your time to listening to this podcast, and I'll see you in the next show. Now go out there and do something that truly inspires you.